an immense amount of hard work into it. I hope that shows in the product, and I hope that's going to pay off. Thank you so much. और मुझे लगता है कि विमल जिस शहर से निकल के आया है वहाँ से दिल्ली पहुँचना और किताब लिखना अपने आप में किसी ताजमहल बनाने से कम नहीं है. It's a really a miracle in that sense. I'll also, now that Sachin is here and Mahi is here, Sachin won't be with us for very long, so if Vimal can come up and just share his thoughts on this evening and what it means to him. This book is all about my friendship and a little goodwill which I have earned in the last 13 years as a TV journalist. For me to start writing for print media was sort of playing ODI matches. It gave me the belief that after all we are not that bad and can adapt. But still, as all cricketers' dream is to play test cricket, writing a book with a world-class publisher was my test ambition. I almost cried yesterday night when Sachin told me once again why I was so stressed out. दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें बोला है तो आऊंगा. And I was like, यार सचिन तेंदुलकर ये कह रहा है, तू क्यों टेंशन ले रहा है, बोल दिया तेरे को आऊंगा तो आऊंगा, तू जा अपना इवेंट का देख. So last but not the least, the great Simon Barnes has written an exceptional piece in this book, which is obviously my favorite piece. I have liked that, where he says that Sachin is a validation, a living emblem of the truth that an Indian can be the best in the world, the best ever if you like, and can do so without appearing to break a sweat and without needing to ask anybody for favors. I will say that same can be said of Dhoni as well. For all small town boys, especially from Jharkhand, he has given us the belief that we too can aspire to be amongst the best. He has given us the reasons to dream. Rajdeep, if I can call you on stage and just come on stage. Thank you very much. First of all, many congratulations to Vimal for writing this book. As someone who has never written a book, I am always in awe of those who have written one, because it takes a lot of hard work and patience to write a book. So, many congratulations to Vimal to write a book, and to write it on Sachin is equally fascinating, because I don't think enough has been written about Sachin, and there aren't enough cricket books about Sachin Tendulkar. It's been really overwhelming. To be very honest, when I started writing the book, when the idea came to my mind, I never thought of, like people like Mahendra Singh Dhoni will be writing the 100th chapter, or Rahul Dravid will be, commenting, or VVS, because all these cricketers, great cricketers, we have admired. Whatever we may say on TV on the day when they perform, but we all know that we admire them, So most of the times we have to say कि यारे fan का चोला जो है अभी मत पहनो, journalist तो journalist की तरह behave करो. तो what happened, जब शुरू में बड़ी modest सोचा कि जिन लोगों को जानता हूँ रणजी के cricketers हैं उनको contact करूँगा. But over a period of time I realized कि the moment I used to say कि I am writing a book on Sachin, so everybody was like, okay, you are writing on Sachin, good. So book, okay. So always the response from the cricketer was different. As a journalist, whenever we approach the cricketer, first thing they do, abhi bhi mai, acha हाँ क्या है, interviews मत करना, interview नहीं. He has not given me any interview. 2006 में किया था. I know the feeling. That interview. उसके बाद उसने बोला कि एक इंटरव्यू करेगा सारे चैनल को. तेरे को जिस दिन अपने लिए चाहिए होगा कोई चीज़ पर्सनल में तो वो बताना. तो I was always saying कि भाई एडम गिलक्रिस्ट ने एक बार गांव जाने का प्रॉमिस किया था कि भाई if I have the time I will visit the rural places. So I used to tease him always. Even that Bangladesh tour in 2007, I remember he came. He was going for some dinner event. I told him I just want to meet him for a few minutes. So he came out in 2007. So he sat with me. इसने पूछा कि क्या प्लान है, तो बता तू मेरे पीछे पड़ा हुआ क्या बात है. तो मैंने बोला नहीं मुझे इंटरव्यू नहीं चाहिए. आपने पहले बोल दिया इंटरव्यू मुझे नहीं चाहिए. देखो ऐसा है, ऑस्ट्रेलियन है, वो गांव जाने को तैयार हो, आप अपने स्टेट के हो, आप जाने को तैयार नहीं हो. वहाँ सारे लोग मुझसे बोलते हैं कब आएगा दुमका कब आएगा. तो इसने कहा कि अच्छा दुमका जाना है. यार दुमका मैं गया नहीं. मैंने बोला नहीं आप खेले हुए हेमन ट्रॉफी में, कई लोग बोलते हैं. तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली दुमका है. मैंने बोला देवघर है, बाबा धाम है. बोला हाँ वो तो सुना हुआ है. तो बोला उसी बहाने चलो पूजा कर रहा, महादेव का भक्त ही से बिग शिव भक्त. तो मैंने बोला महादेव को पूजा कर लेना आप. तो ही प्रॉमिस्ड मी ऑन दैट डे कि ठीक है चलो ये काम तेरा कर दूंगा, जाऊंगा दुमका. And that was the one common reference with Adam Gilchrist, with Mahendra Singh Dhoni. That was the common. I never used to ask interview. I just used to remind them, याद है ना दुमका जाना है,
याद है ना दुमका? तो ही वॉज लाइक कि यार ही कुछ नहीं मांग रहा, एक बार दुमका चले जाओ। एंड ही न्यू दैट कि मेरा शेड्यूल है, मैं तो अपने घर नहीं जा पाता हूँ, दुमका क्या जाऊँगा। तो चल ये अच्छा माना, ये भी खुश रहेगा, हाँ दुमका जाना तो जब तक रिटायर करूँगा तब देखी जाएगी। तो मैं बोलता यार गजब की बात है, एडम गिलक्रिस्ट ने बोला हुआ, आपने बोला तो इसने बोला, फिर आफ्टर ए वाइल एवरीथिंग वाज हैपनिंग, राइटिंग द बुक एंड at best of times, and I think this is the best quality why he's still sane. He doesn't pick up the phone, SMS नहीं उठाते हैं. Even I was in Hyderabad especially to get the confirmation. I had got the confirmation, mail कर चुका था सारी चीज़ें, but he did not say anything. मैं हैदराबाद में गया, टीम होटल में ठहरा, किसी तरह से मिलने के लिए इनके रूम तक नहीं पहुंच पाया। बोला कि भाई कप्तान ने बोला नहीं वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मैं बोला ठीक है। मैं सुबह 5 बजे पहुंच गया, 5 बजे से ही, शनिवार का दिन था मुझे याद है, ये ब्रेकफास्ट करने के लिए आए। मैंने बोला कि शनिदेव की आज पूजा करके आया हूँ कि आज तो कप्तान को पकड़ना ही है। तो ये सर क्या है प्रॉब्लम तेरे को? मैंने बोला प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपने बोला था कि जगह गाँव जाऊँगा, गाँव तो जब जाओगे वो देखा जाएगा, पता नहीं बुढ़े हो जाऊँगा, यहाँ पर आ जाओ, एक किताब लिखी हुई है सचिन पे लिखी हुई, इतनी मेहनत की हुई है, एंड इट्स ओनली अप्रोप्रिएट दैट यू शुड बी द चीफ गेस्ट। तो बोला अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो बोला लेकिन मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो मैंने सोचा कि यार अभी बोलूँगा तो फंस जाऊँगा, फिर इंटरव्यू। तो मैंने बोला अच्छा इसको ओपन रहने दो, ये ओपन रहेगा, ये डील यहाँ पर यही है कि भाई वहाँ पर उस दिन के हिसाब से। तो ऑन दैट डे ही वाज मूड अच्छा था, 2-0 से लीड करके आते तो थोड़ा सा भी था भी। तो मैंने सोचा कि अच्छा दिन है। क्रिकेटर्स का, रिपोर्टर्स की भी टाइमिंग बहुत अच्छी होती है, आपको पता होना चाहिए कि भाई कब मांगना चाहिए, कब मांगने से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो परहैप्स आई वाज लकी that Indian team was doing so well. Mahi was coming with a big knock, which I think that one of the greatest innings we have seen in India. So that I think that has played its part. And what else? Just feel speechless. There have been so many things. When I started my career, I thought my dream was to cover the 2007 West Indies World Cup. Back in 2001, I have thought I never discussed anything, any ambition. So that was the thing. So when I got the opportunity, thanks Rajdeep and Ashutosh, who trusted on a new reporter. They said, and Rajdeep more because by then I was only a Hindi reporter. I was doing a bit of English for Aaj Tak, but Rajdeep told me कि नहीं तू जा रहा है और वहाँ पर पाकिस्तानी टीम को तू कवर करेगा. As it happened कि पाकिस्तानी tour was the news of the World Cup more than Indian news. So thankful to Rajdeep and Ashutosh. बहुत डिबेट होते हैं. The best thing is कि टीवी के 2 सबसे डेमोक्रेटिक एडिटर्स एंड वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट. इसमें कोई बात नहीं है. बहुत डिबेट होती है, गंदी डिबेट होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, बहस होती है कि नहीं आप नहीं जाते, नहीं तुम लोग प्लेयर के बारे में ये कहते हो. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आप अपने पॉइंट रखो, बहस करो. लेकिन जो क्रिकेट के लिए एंड राजदीप का थोड़ा सा बायस रहता है क्रिकेटर्स पे, चूंकि खुद क्रिकेट उनके खून में है, तो इसका फायदा हम लोगों को मिल जाता है. Akash, any observations since you have had the experience of playing with Mahi in the India A team as well, and Sachin as well, you've played a lot of cricket with. Just any observations? You see similarities between the two? Well, a lot of similarities because that calmness is endearing because it's difficult to be calm when you're actually in the midst of a storm. And these guys are always in the midst of the storm whenever they are representing the country. So obviously, hats off. In fact, he hasn't changed. 2004, I remember, we go back a long way. And he was still a calm guy. आमतौर पे देखते थे हम लोग का, कम से कम जब क्रिकेट कवर करते तो ये एक्सपीरियंस था कि जब भी टीम हारती थी तो कप्तान पीछे चला जाता है. हमने देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत कप्तान उस दिन सपोर्ट स्टाफ आ जाते हैं, कोच आ जाते हैं नॉर्मली टीम को डिफेंड करने के लिए. लेकिन धोनी के साथ ये खासियत रही है. और खासकर मैंने देखा इंग्लैंड में जब ये गए थे, बड़ी हाई प्रोफाइल सीरीज थी, वर्ल्ड कप के बाद जा रहे थे, 100 टेस्ट मैच, 200 से एक के बाद एक मैच हारते गए. और मेरी किताब का इंटरव्यू वहीं पर शेड्यूल था, तो इन्होंने कहा था कि पहले टेस्ट मैच में करूंगा. तो जैसे जैसे टीम हारती गई मेरा इंटरव्यू दूर चला जाता गया, तो वो पर्सनल लॉस था. लेकिन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और जो भी डिसीजन होता था, जितनी भी क्रिटिसिज्म होती थी, ही यूज्ड टू डिफेंड. एंड दैट आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू कैप्टन्स हु डू दैट. शिखर का 100 होने वाला था एंड बहुत कम होता है उस समय, नॉर्मली हम लोग लाइव चले जाते हैं तो वो मोमेंट नहीं देख पाते. तो लेकिन शिखर का 100 देखा, पूरी टीम आ गई ड्रेसिंग रूम में, ताली बजाती है, स्वागत कहती है. महेंद्र सिंह धोनी कभी नहीं आते. मैंने चर्चा भी की, मनिंदर सिंह थे, बोले महेंद्र सिंह धोनी कभी नहीं आते हैं. उनकी टीम का खिलाड़ी 50 करे, 100 करे, फास्टेस्ट 100 करे, पता नहीं क्यों, मतलब ऑलवेज आप अवॉइड करते. जॉन राइट में ये क्वालिटी होती थी, जब भी ग्लोरी का मोमेंट आता था. ये क्यों? वर्ल्ड कप में भी आप जीते सबसे पीछे. नहीं, ये टशन रहता है, जहाँ पे बैठे हैं वो 99 तक पहुंचा है, उठ के बाहर चले जाएंगे, 1 रन नहीं बना तो. उनकी टीम से 2 ऐसे हो गए जो 90 पे आउट हो गए. तो आई ऑलवेज कम आउट, स्पेशली जब भी कोई 100 बनाता है. बट जब तक मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं जब वो रन हो जाता है उसके बाद जाता हूँ, तो फिर
पाजी भी आपको बहुत कम दिखेंगे, तो जनरली आगे का जो सीट्स होते हैं ना वो कवर हो जाते हैं तब तक, तो हम पीछे कहीं कोने से ताली बजाते रहते हैं। नहीं, लेकिन जबरदस्ती आपको सुना है कि टीम कई बार खींच के लाती है। वर्ल्ड कप में भी जीतने के बाद फोटोग्राफ्स वगैरह सबसे पीछे, वन ऑफ द बॉय सपोर्ट स्टाफ की तरह है, फोटो ढूंढनी पड़ती है, धोनी कहाँ है? नहीं नहीं, आई एम ऑलवेज देयर, यू नो, इट्स जस्ट दैट अगर कोई नया लड़का है या किसी ने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा किया है, उसको आप ले जाके ट्रॉफी देते हैं, तो इट्स लाइक अप्रेजल फॉर हिम, यू नो, यू आर अप्रिशिएटिंग व्हाट ही हैज़ डन, ही विल गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एट द एंड ऑफ द डे हमने ट्रॉफी जीती है, मैं पकड़ूँ कोई और पकड़े, बट अगर वो ट्रॉफी मैं किसी और को देता हूँ और उससे मुझे ये बेनिफिट होता है कि इंडिया के लिए आने वाले समय में और अच्छा करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जेस्चर, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हैदराबाद में आपसे पूछा सौरव गांगुली का आपने रिकॉर्ड तोड़ा, तो मैंने बोला कि आज तो फोटो बनती है, मतलब आपने बोला किस बात की फ़ोटो, तो मैंने कहा कि भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे बड़े कप्तान हो गए। तो आपने बोला 23 कोई नंबर है, तो मैंने बोला कौन सा नंबर, तो आपने कहा 150, तो मैंने बोला 150 मतलब 150 विन, उस पर कुछ कहेंगे? नहीं, काफ़ी लोगों ने इस टॉपिक पे काफ़ी बातें की हैं, बट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट कि मैंने 20 जीती हूँ, दादा ने 22 जीती हूँ या किसी और ने 15 जीती हूँ, हम अपने पॉकेट में लेके नहीं जाएंगे। यू नो, अल्टीमेटली ये इंडिया टीम के ही कैटेगरी में आएगा कि इंडियन टीम ने इतने टेस्ट मैचेस जीते हैं। सो आई थिंक ये हाफ एन आवर का अच्छा शो बनता है, यू नो, 7:30 से 8 में डिस्कशन अच्छा होता है। Thank you very much to the Indian captain for coming in and sparing the time. Thank you also, Vimal Kumar. Congratulations.